Hi everyone, a very good evening. So, as per the request of Mohan sir and site manager, I am trying to make a small video of all the asanas which I have showed you yesterday. The three pranayams which I have showed you yesterday, I have sent the link to Mohan sir. You can go through these three links and you can have a clear idea. And the techniques are the same as I have explained you yesterday. So now I'll be starting with Badha Konasana. And for that, you have to sit first in Sukhasana pose. Sukhasana is the most comfortable pose in which we all sit. Basically, this is the position where we used to eat, sit, or talk, or do anything. But now, very few of us sit in this asana or this position because of the chairs and all. So now I'm starting these Badha Konasana asana. So for that, first of all, you need to sit in the Sukhasana position and then slowly you have to elongate your legs like this. पैरों को ऐसे सीधा करना है, एकदम straight. Please remember कि जब आप कोई भी आसना कर रहे हो, your body should be very free, मतलब वो flexible होना चाहिए. आपको body stiff करके कोई भी आसना नहीं करनी चाहिए. So now what you will do? First, you have to fold your right or left leg like this. आपके लिए जो भी convenient रहेगा, आप उस leg को fold कर सकते हैं. Then you have to fold your next leg like this. आपको ये एश्योर करना है कि आपके जो legs है ना, ये ऐसे रहने चाहिए जैसे अभी मेरे legs है, ऐसे है. प्लीज ट्राई कि आपके लेग्स ग्राउंड को टच करें. ट्राई कीजिए. फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होगा, बट स्लोली एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वो हो जाएगा. आपके हाथों को यू हैव टू इंटरलॉक योर हैंड्स लाइक दिस. हाथों को इंटरलॉक कीजिए लाइक दिस, पैरों को होल्ड कर कर, एंड देन स्लोली आपके दोनों पैरों को उठाना है एंड फिर इसको ग्राउंड में टच करना है. स्लोली यू हैव टू raise your legs like this and make it down like this. First you have to do this very slowly, बहुत धीरे से करना है. Gradually जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, then you can make the frequency a little bit high like this also. But I'll prefer कि आप इसको ऐसे ही कीजिए initially for some days. उसके बाद आप इसकी frequency बढ़ा सकते हैं. इसको हम लोग तितली आसना भी बोलते हैं. What it does to your body, ये आपके हिप्स को, थाइस को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है. जिनको साइटिका का पेन है या जिनको अर्थराइटिस है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. अभी जैसे आपने इसके 15 सेट्स कर लिए हैं, लाइक दिस इज द 1 सेट, दिस इज 2 सेट. पूरा उठा के पूरा बैठाना, इसको एक सेट बोलते हैं. After you finish doing this set for 15 times, फिर आपको slowly आपके हाथों को ऐसे करके you have to line up. फिर slowly आपको फिर से back to your position आ जाना है. Remember, जब आप इसको नीचे कर रहे हैं अपने head को, you should be inhaling, और जब आप उठा रहे हैं you should be exhaling. आप इसको normal breath भी कर सकते हैं, like you can do your normal breathing also while performing these asana. मैं इसको फिर से और एक बार दोहरा रही हूँ. Please look into this. It should be very slowly. Your hand should be in this position and your head should be like this. Slowly back to the normal position. So this is all about the Badha Konasana or the Titli Asana. Next we are moving to the next asana. So now we'll be doing the Makrasana. मकरासना के लिए आपको लाई डाउन करना है लाइक द प्रीवियस आसनास. सो पहले आप लाई डाउन कर लीजिए लाइक द वे व्हिच आई हैव डन. फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला दीजिए लाइक दिस. आपके जो दो पैर है ना, इट शुड बी इन नमस्ते पोजीशन. हाथों को अपने स्टमक के ऊपर रखिए एंड स्लोली अपने सर को उठा लीजिए. ये जो बैक साइड है ना, इसमें आपको गैप रखना पड़ेगा, लाइक
आप नॉर्मल रहेगा एंड ऑल्सो यू कैन डू दी डीप ब्रीदिंग. Try to be in this position for at least 60 seconds to 150 seconds. Then slowly back to the normal position. पैरों को आगे की तरफ ले जाइए, हाथों को इसे रखिए, मूविंग टू योर साइडवेज. धीरे से सुखासन की तरफ आ जाइए. अभी हम लोग करेंगे दी मोस्ट इजी आसनास ऑफ ऑल, दैट इज दी साइड बेंडिंग आसना. फॉर दैट आपको क्या करना है, सुखासना पहले आपको बैठ जाना है. सुखासना पे बैठने के बाद एक पैर को आपको पीछे ले जाना है लाइक दिस वे, एंड द नेक्स्ट लेग आपको आपके पैर के ऊपर रखना है. दिस विल बी द आइडियल पोजीशन. फिर जिस पैर को आपने बेंड किया है दैट हैंड शुड बी ऑन योर बैक. आपको इस हाथ को, मतलब जिस पैर को आपने बेंड किया है उस हाथ को आपको पीछे की तरफ लेके जाना है. यू कैन सी आई एम वेविंग माई हैंड फ्रॉम दिस साइड. ले जाना है. इस हाथ को आपको अपने इस पैर के ऊपर रखना है एंड धीरे से यू हैव टू मूव साइडवेज लाइक दिस. जितना हो सके ट्राई टू बी ऑन योर साइड, जितना हो सके. ये आपको शोल्डर को, नेक को, स्पाइन को, आपके कोर मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है. ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, गिव्स द ब्लड फ्लो टू योर एंटायर स्पाइन एंड योर ब्रेन एरिया. Try to be in this position for at least 1 to 2 minutes. Slowly release the position. हाथों को ले जाइए नॉर्मल वे में. पैर को सुखासन पे रखिए एंड यू आर डन विद दिस पोज. अभी थोड़ा सा हम लोग शोल्डर एंड हैंड्स को मूव करेंगे. दीज आर द लाइट एक्सरसाइजेस जो आपको आसना करने से पहले करना है. सिट इन सुखासना. दोनों हाथों को सामने लाइए. योर हैंड शुड बी लाइक दिस एंड ट्राई टू रोटेट इट इन दिस वे क्लॉकवाइज, अगेन इन एंटी क्लॉकवाइज. इस आसन को आप 5 मिनट्स तक कर सकते हैं. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन. आप इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं. आफ्टर डूइंग दिस ब्रिंग योर हैंड्स टू योर शोल्डर, क्योंकि शोल्डर रीजन में भी हम लोग को मूवमेंट देना है. सेम वे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. 5 मिनट्स फॉर ईच पोजिशन. इस पोजीशन में आप और एक आसना भी कर सकते हैं, दैट इज द पर्वतनासना. आपको सुखासन में ही बैठना है. स्लोली अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है लाइक दिस एंड आपको ऊपर की तरफ देखना है. दिस इज नोन एज द पर्वतासना. आपको 5 मिनट इस आसना में रहना है. ब्रीदिंग आपका इनहेल और एक्सहेल में रहेगा. आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं like this. Slowly release both your hands and be in your Sukhasana position. अभी हम लोग का लास्ट दो आसना है, that is one is the Tadasana and the last one is the warrior pose. Okay. Now to Tadasana. Stand straight. This should be in an erect position. अभी धीरे से आपके दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ लाइए. हाथों को आपको इंटरलॉक करना है लाइक दिस. पैरों को ऐसे उठाना है लाइक दिस. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. जब भी आप कोई आसना करें ट्राई टू
क्लोज योर आईज, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको मिलता है। सो इस आसना से क्या होता है, आपकी हाइट इंक्रीज होती है और आपके पूरे बॉडी को ये स्ट्रेस रिलीफ करता है। सो अभी हम लोग करेंगे वृक्ष आसना और दी ट्री पोज। तो उसके लिए पहले आपको ऐसे स्ट्रेट खड़े होना है, देन स्लोली आपके लेफ्ट लेग को आपको ऐसे उठाना है। क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड ज़्यादा बैलेंसिंग है तो आई एम कंफर्टेबल विद दिस, तो मैंने इसलिए इस साइड से दिखाया है। आपका जो साइड ज़्यादा बैलेंसिंग है आप उस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। स्लोली आपके जो दोनों हाथ हैं उनको ऐसे करके करना है, करके आपको धीरे से आपके हाथों को ऐसे उठाना है। उठा के यू ट्राई टू बी इन दिस पोजिशन फॉर 1 मिनट। ये आपके पूरे चक्रास को हील करता है, दी होल चक्रास, और आप इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं। जब आपका इस साइड हो जाएगा देन यू कैन ट्राई आउट विद दी अनदर साइड। आप अपने हाथों का हेल्प ले सकते हैं फॉर बैलेंसिंग दी लेग्स, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छा ग्रिप मिलेगा। देन द सेम पोजिशन अगेन, हाथों को ऐसे उठाइए। योर हैंड शुड बी द नमस्ते पोजिशन, और ऐसे ही आपको खड़े रहना है जितना टाइम आप कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं। मेरा लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव है सो आई कैन स्टे इन दैट पोजिशन लॉन्गर। और अगर आपका राइट साइड है या लेफ्ट साइड, जिस साइड भी आपका एक्टिव है, यू कैन स्टे इन दैट पोजिशन फॉर लॉन्गर साइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वृक्षासना। धीरे से पोजीशन को रिलीज कीजिए करके, लाइक दिस। सो नाउ विल बी डूइंग द सेतुबंद आसना और द ब्रिज पोज। सो बिफोर स्टार्टिंग फॉर दिस आसना प्लीज रिमेंबर कि इस पोजीशन में या इस आसना में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा एफर्ट टेकिंग आसना है। पर ब्रीदिंग नॉर्मल ही रखिए, ब्रीदिंग को होल्ड मत कीजिए। ब्रीदिंग होल्ड करने से इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू इन दिस पोजीशन। ट्राई टू बी इन दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 30 to 60 सेकेंड्स। जितना आपके लिए कंफर्टेबल है उतना टाइम ही आप इसको रखिए, पर धीरे धीरे ट्राई टू मेक द टाइम, थोड़ा सा टाइम इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सो फॉर दिस पोजीशन पहले आपको लाई डाउन करना है द वे इन विच आई एम डूइंग। लाई डाउन करने के बाद आपके पैरों को आपको फोल्ड करके इस पोजीशन पे लाना है। फाइन। दोनों हाथों को ग्राउंड में या सरफेस में ऐसे रखना है। आप अपने पैरों को थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। धीरे से आपके पूरे बॉडी को ऐसे करके आपको एलिवेट करना है या उठाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। Try to be in this position as much as you can, because इस position में it gives the maximum amount of oxygen and blood to your upper region of the body. अगर प्रॉब्लम हो रही है, come back to the normal position and then again elevate your body to like this bridge. It should look like the bridge. Breathing should be normal. Back to the normal position. पोजीशन को रिलीज करने के लिए सर्वासना में पहले अपने बॉडी को लाइए लाइक दिस वे, जैसे मैं ला रही हूँ। साइडवेज हो जाइए एंड धीरे से बैक टू सुखासना। अभी हम लोग करेंगे दी बालासना और दी चाइल्ड पोज। ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कीपिंग योर गैस एंड ब्लोटिंग अवे। ये आपको काफ़ी अच्छी नींद भी देता है, बट ट्राई टू डू दिस इन दी अर्ली मॉर्निंग और इन दी इवनिंग। प्लीज रिमेंबर, जितने भी आसनास आप कर रहे हैं प्रेफरेबली इन दी एम्प्टी स्टोमक, नॉट इन हेवी स्टोमक। वज्रासन में बैठ जाइए। प्लीज डायरेक्टली मत बैठिए, पहले एक साइड को बेंड कीजिए, फिर दूसरे साइड को बेंड करके फिर बैठिए। अभी जैसे मैं वज्रासन में बैठी हूँ, ट्राई टू बी इन दिस पोजिशन। ट्राई टू रिलैक्स योर बॉडी, जितना हो सके बॉडी को हल्का कीजिए। हाथों को धीरे से सामने की तरफ ऐसे मूव कीजिए। जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेट रखिए। ट्राई टू कीप योर बॉडी स्ट्रेट। धीरे से अपने सर को, योर हेड should be touching the ground. Your breathing should be normal.
ट्राई टू बी इन दिस पोजिशन फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। फिर धीरे से हाथों को बैक टू योर थाई लाइए, एक गहरी सांस लीजिए एंड अगेन बैक टू सुखासन। सो द नेक्स्ट आसना इज वज्रासना। तो वज्रासना के लिए आपको सुखासना पोजीशन में पहले बैठना है। उसके बाद आपको आपके दोनों पैरों को सामने लाना है। यू हैव टू ब्रिंग बोथ योर लेग्स लाइक दिस, सॉरी लाइक दिस। यू अंडरस्टूड? अभी आपको आपके दोनों पैरों को पीछे बैक में टक करना है। सो फॉर दिस साइडवेज पहले आप एक पैर को ऐसा टक करेंगे, एक हाथ से आप सपोर्ट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेग से इस तरह से पीछे ले जाएंगे और दोनों पैरों को इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने से यू विल गेट अ बेटर ग्रिप ऐसे बैठने के लिए। जैसे आप ऐसे बैठ गए इन अ रिलैक्स पोजीशन, यू हैव टू प्लेस बोथ योर पाम्स इन योर थाइज लाइक दिस। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको दोनों पाम्स को वैसे रखना है। प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आप कोई आसना कर रहे हैं, डोंट सिट लाइक दिस, प्लीज़ सिट स्ट्रेट। आपका जो बॉडी है ना, उसको जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू डू दी आसनास। और बॉडी स्ट्रेट रहेंगे तो आपका पॉस्चर भी करेक्ट रहेगा और इट विल गिव यू मैनी बेनिफिट्स। सो जैसे आप कंफर्टेबली बैठ गए हैं इन दिस पोजिशन, सो देन प्लेसिंग योर पम्प्स इन योर थाइज, आपको इनहेल और एक्सेल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इस तरह से स्लोली आपको इनहेल और एक्सेल करना है टिल 10 मिनट्स। आप इसको 15 मिनट्स भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली आफ्टर योर लंच और डिनर, क्योंकि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। एंड ये आपके गट सिस्टम को, आपके इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखता है। बॉडी का जो दी एब्जॉर्प्शन ऑफ योर फूड, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो नेक्स्ट विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट आसना, दैट इज़ द कैट काउ पोज, जिसको हम लोग विलातासना भी बोलते हैं। सो पहले हम नॉर्मल पोजिशन में आ जाते हैं। प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आप कोई भी आसना करें ना, पहले आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इससे क्या होगा ना, योर बॉडी विल विल गेट अ रिदम, उसको एक रिदम मिलता है। और कभी भी जंप मत कीजिए फ्रॉम वन आसना टू अनदर आसना, फ्रीक्वेंसी में जंप मत कीजिए। प्लीज़ 1-2 मिनट या कुछ सेकंड्स का टाइम दीजिए अपने बॉडी को नॉर्मल पोजिशन में आने के लिए, देन यू कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट आसना। सो कैट काउ पोजिशन के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ऐसे मेरी तरह बैठ जाना है। फाइन, आपको दिख रहा है ना? फिर आप देखिए, यू कैन, जो थाई है ना, मैं आपको फ्रंट वे भी करके भी दिखाऊंगी। ये जो आपका लेग है ना, इसको आप थोड़ा सा गैप रखिए, यू शुड कीप सम गैप, तो फिर आपको ज़्यादा होल्ड मिलेगा। योर हैंड्स शुड बी लाइक दिस, स्ट्रेट। किसी भी तरह से इसको ब्रोक मत कीजिएगा, इट शुड बी स्ट्रेट। एंड देन like this, you have to look upwards, your chin should be straight like this, then slowly like this। जब भी आप इस पोजीशन में आ जाएंगे ना, आपका ये जो बैक है ना, ये हम की तरह होना पड़ेगा, इट शुड बी कर्व, ये हम शुड बी इन अ कर्व पोजीशन। अगेन अगेन, inhale, exhale,
इनहेल, एक्सहेल। तो इस तरीके से ऐड, हाँ मैं आपको दिखा रही, ये मेरा फ्रंट है, आपको ऐसे बैठना है लाइक दिस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैट काउ पोज और द विलातासना। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे मालासना के लिए या द गार्लैंड पोज। कैट काउ पोज जो है ना, ये आपके जो स्पाइन है, स्पाइन सिस्टम और जो आपका ब्लड फ्लो है थ्रू आउट दी बॉडी, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और स्पेशली आपका जो स्पाइन सिस्टम है इसको इरेक्ट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो फॉर मालासना आपको ऐसे पहले बैठना है लाइक द वे आई एम सिटिंग, ठीक है। अभी हाथों को, योर हैंड्स शुड बी लाइक दिस, ठीक है। धीरे से आपके बैक जो है ना, द पेल्विक रीजन, इसको आपको उठाना है। क्या होता है ना, यूजुअली हमारे ये जो पेल्विक रीजन है इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट दिस रीजन शुड ऑल्सो गेट एनफ ऑक्सीजन एंड ब्लड। यूजुअली तो ब्लड मिलता है बिकॉज हम लोग ऐसे ही बैठते, ऐसे ही खड़े रहते हैं, बट दिस एरिया इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन टू गिव इंपॉर्टेंस टू द पेल्विक रीजन। एंड या ये आपके डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रेफरेबली इन दी मॉर्निंग इसको आप 5 to 10 मिनट्स कीजिए। इनिशियली नहीं होगा बट स्लोली ये हो जाएगा। एंड आप देखेंगे कि स्पेशली आपको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस ऑन रेगुलर बेसिस। हाथ को मैंने ऐसे किया, यस। और आप इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। इसमें आपको इनहेल और एक्सहेल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर गिर रहा है। जितना हो सके यू ट्राई टू स्टे इन दिस पोजिशन, ओके। भी धीरे से इसको लाना है, धीरे से, ओके। अगर इनिशियली आप इसको ज़्यादा उठा नहीं सक रहे हैं तो आप इनिशियली पहले इस पोजीशन से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे करके इसको आप उठा सकते हैं, ओके। सो नाउ